Learning is a journey, one that begins in childhood. But for some children, this journey is filled with challenges that remain invisible to the eye. Learning disabilities like dyslexia affect millions, but early detection can change lives. In the hills of Kohima, a local government school is making strides toward inclusivity. An inclusive school is one where all children, including those with disabilities, study together with equal opportunities. The school administration felt a shortage of special educators. Special educators are key, not just for teaching, but also for identifying and early screening of specific learning disabilities. In our school, there are CWSN students, and we feel that we are short of the resource person. So with all those, we need a specific teachers to look after them. But that was a problem, so we keep on insisting the department to provide those teachers to take care of our students. So I think the department is also working on that. While Daniel Thong, now running his own inclusive school, sees it differently. Initially, I was affected. In my childhood, I suffered from bone TB, and for 2 years, I had to limp around, walk around with a stick, and my determination was that one day I'll open an inclusive school. But I have never told this to anybody. That the way I was treated by my friends from the school and at home and in the society, I was determined. There is always a need for a special educator. There is always a need for a person who can understand the child. But when it comes to implementing education in a classroom, the special educator and a general teacher, they find it a little challenging. In an inclusive classroom, a general teacher is able to address the issues of the children present there along with the other special children. And whenever the special teacher also comes, she is able to do the same thing. The shortage of special educators and lack of training for general teachers in early identification has been a challenge in Nagaland. A challenge the education department in Nagaland is well aware of. So the first pillar for us is early childhood care and education and foundational literacy and numeracy. Since it's a proven fact that if kids don't have a strong foundation, any number of interventions at a later point is simply not going to have the same effect. Especially like in rural areas, we have a first generation learners. So they are finding it difficult to cope up in schools. So they might be intelligent, but since they receive no support from home, many of the teachers, they say, just leave them aside. And that is the reason why, early intervention is required. And if we can detect the case of SLDs from an initial age, then it will really have an impact. When children enter formal schooling, they start on an equal footing. However, some with learning disabilities begin to fall behind despite their intelligence due to a lack of support. Teachers trained in identifying these disabilities play a crucial role in initiating early intervention, helping these children get the support they need. Hence, the Nagaland Education Department focused on raising awareness among parents and educators while training teachers to screen students with special needs early. The Directorate is facilitating the screening of kids who are at risk of SLDs. Samagra, they're working with Samagra in terms of training the special educators, building the capacity, what else that can be done. So the multi-agency effort that's happening as we speak. We had a talk with the changing team, so they came up with a proposal where they say that they need to go to school, they need to screen out students, and I was made to understand the process, and that's how the screening process, especially in Dimapur districts, we carried out. It is also developing training modules to help teachers address specific learning disabilities early on.
We include topics like UDL so that when they go to school they will be able to give academic support. Then we also go for cross disability training, and we also provide platforms for these IERPs who are working in the field to come and share the best practices so that the IERPs can learn from each other. Thanks to initiatives under Samagra Shiksha Abhiyan and Nipun Bharat, Nagaland now has one of the best teacher-student ratios in the country. Any kid, a kid who is differently abled, be it a kid who's suffering from an SLD or is physically challenged, needs to necessarily have the same opportunities as a kid who is not. That's the responsibility of the state to ensure that. So the work with changing that we're doing at this point in time is enormously helping us on that front. The challenges are similar in this government school in Hajipur, located on the outskirts of Patna city. कुछ तो बच्चे हर क्लास में सर अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो अपने सिलेबस के हिसाब से अच्छा करता है, पढ़ता है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो मैंने देख के भी लिख नहीं सकते। मेहनत वो भी कर रहे हैं, हम लोग भी करते हैं, समझाते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सर आता है कि किसी बच्चे में खूब समझाइए, उसको बहुत अच्छे से समझाइए, फिर भी वो कैच नहीं कर पाते हैं। कभी उल्टा अगर एक पेज देख के लिखने कहिए तो उल्टा लिख के लाएंगे, कभी पेन पकड़ने का भी उनका ये नहीं होता है, नॉलेज सही नहीं होता है। To address this issue, DIET, District Institute of Education and Training, is training both existing and new recruit teachers in screening and teaching methods for learning disorders under the Universal Design for Learning (UDL) framework. जब बात SLD की है और बात जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की करते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन दैट मीन्स कि हमारा मतलब इंक्लूड करना सारे बच्चों को, चाहे वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की भी बात करते हैं। तो एक क्लासरूम्स में जब इतने डिफरेंट टाइप्स के बच्चों का समावेश होता है, इंक्लूजन होता है, तो उसमें एक टीचर के लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि एक टाइम टेबल के हिसाब से, एक रूटीन के हिसाब से, एक पर्टिकुलर टाइम में इतने तरह के बच्चों को एक क्लासरूम में डील करना, दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बट ट्रेनिंग, अगर टीचर्स, ये जो SLD की बात हम कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक लर्निंग डिज़ाइन है, ये यही सोच के बनाया गया है कि आप सभी बच्चों के जो लर्निंग नीड्स है, आप उसको सेम टाइम में अप्रोच कर सको। लास्ट ईयर जो है आप NGO संस्था है चेंजिंग फाउंडेशंस के द्वारा और इवन एज अ डाइट हमारा कोलैबोरेटिव अप्रोच था, जो लास्ट ईयर हमने प्री सर्विस स्टूडेंट्स पे, हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों पे हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था, जिसका टॉपिक ही आपका SLD टॉपिक पे ही था, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर पे ही हमारा बेस्ड वो वर्कशॉप था, जिसमें कि बच्चों के बीच में ये सारी चीज़ें शेयर की गई थी कि मतलब SLD की बात अगर हम करें तो ये SLD क्या है, पर मतलब SLD डिसऑर्डर इनमें है तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सको। तो इसमें हमारे यहाँ लास्ट ईयर वर्कशॉप हुई भी थी। While the screening process improves, CRC Patna, which is the composite regional center for skill development, rehabilitation and empowerment of persons with disabilities, is focusing on clinical diagnosis for children with specific learning disabilities. जो SLD वाले बच्चे हैं, इनको हर तरह की नीड होती है, मतलब कम्प्रिहेंसिव इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। इट इंक्लूड्स एट द लेवल ऑफ, आई थिंक, एक तो है पर्सनल लेवल पे, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे बच्चे की ज़रूरत, पेरेंटल लेवल पे सपोर्ट्स, और बच्चा जहाँ पे एनरोल्ड है, और जैसे कि स्कूल गोइंग बच्चा होगा तो स्कूल्स में एनरोल्ड है तो वहाँ पे भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसमें अगर देखेंगे कि SLD वाले बच्चे, और SLD एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसमें कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, बट किसी बच्चे को हो सकता है कि स्पीच लैंग्वेज थेरेपी की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन में भी उनको डिफ़िकल्टीज आ सकती है। किसी बच्चे को पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि एजुकेशनल प्रॉब्लम ही आती है, तो किसी बच्चे को अलग अलग प्रॉब्लम आती है। तो उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए आपको एक कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट और इंटरवेंशन दोनों की ज़रूरत होती है। CRC में वो कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट और उसका जो इंटरवेंशन है वो दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही होता है। कोई भी एक बच्चा किसी एक स्कूल में है, ठीक है, वो कोई एकेडमिक डिफ़िकल्टीज उसको आ रही हैं, उसको एकेडमिक उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर है, तो अगर वो वहाँ आइडेंटिफाई होता है थ्रू टीचर्स है, पेरेंट्स में भी कंसर्न, एंड
तो दे आर रेफरिंग टू अस। तो आप यहाँ हमारे यहाँ आने के बाद हम उनका असेसमेंट करते हैं। एक उसका एजुकेशनल असेसमेंट होता है, एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है। तो जो इन इंडिया दैट वट एवर रूल्स वी आर फॉलोइंग फॉर टू डायग्नोसिस एंड फॉर असेसमेंट ऑफ SLD, सो हम वो प्रोसीजर पूरा फॉलो करते हैं, जिसमें SLD के लिए एक इंटेलेक्चुअल असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और वो अगर आती है असेसमेंट में आती है कि हाँ इसको मान लो दैट पर्सन इज पॉजिटिव इन दैट पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी, तो उसको हम डायग्नोसिस करते हैं इसे। CRC Patna is not just looking at diagnosing intellectual disabilities, but also focusing on the overall development of students by addressing psychological, social and other developmental challenges in students. क्योंकि एकेडमिक में वो कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं उसका सोशल इमोशनल पार्ट है वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है कि उसको चांस नहीं मिलता, उसको टीचर अप्रिशिएट नहीं करते, उसके फ्रेंड्स जो हैं उससे बात नहीं करते अच्छे से क्योंकि वो एकेडमिकली पुअर है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से उसको अटेंशन भी चाहिए क्लास में, तो वो एकेडमिकली उसको अटेंशन नहीं मिल पाती, तो वो इधर उधर के थोड़ा बहुत बिहेवियरल इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं, जिस वो इसलिए करता है क्योंकि मुझे अटेंशन चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस जो हैं इनिशियली डेवलप होते हैं, तो उन सब का इंटरवेंशंस जो हैं हम यहाँ करते हैं। While CRC Patna is making strides in diagnosing children with SLDs and recognizing the importance of early intervention, they are also aware that this infrastructure must extend beyond the capital into remote villages to create widespread impact and working diligently towards that. तो हमारा डिपार्टमेंट है, CRC नेशनल इंस्टीट्यूट है, ये फोकस्ड ऑन अर्ली इंटरवेंशन और एक अलग से अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स बनाए हैं हर जगह। अगर जितना जल्दी उस बच्चे को हम असेस कर पाएँ, जितना जल्दी हम उस बच्चे की स्क्रीनिंग कर पाएँ, उतना ज़्यादा इंटरवेंशन हम दे सकते हैं और आगे जाके उसकी लाइफ में उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। और ख़ासकर बहुत सिटी एरिया में या कुछ एरियाज़ में पहुंच है पेरेंट्स की, लेकिन खासकर रूरल एरियाज़ में अगर आप देखेंगे वहाँ पे अभी भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो उनको पता नहीं है जाना कहाँ चाहिए, अगर जाना चाहिए तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, वो अभी भी ना पेरेंट्स को पता है ना एडुकेटर्स को पता है। तो ये सब काफ़ी चैलेंजेस आज के डेट में भी है। इस पे पॉलिसी लेवल पे हमको रूट लेवल से लेके हर लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि बाकी है, इसको करना है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें काफ़ी मुझे लगता है कि हर तरह के प्रयास करने होंगे। In the neighboring state of Uttar Pradesh, the main challenge is raising awareness among parents and stakeholders. पहले मैं बता दूं कि आपको SLD कैसे हम लोग ने ढूंढा, कैसे पता किया कि हाँ ये बच्चा SLD है। तो हम लोग जैसे स्कूल गए तो स्क्रीनिंग करनी होती थी, बच्चों की स्क्रीनिंग की। पता चला कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में लिख नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये दिक्कतें कर रहे हैं। तो मैम लोगों ने भी बताया कि ऐसे ऐसे बच्चे हमारे यहाँ हैं, 2-3 साल से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, बच्चे पढ़ते ही नहीं, क्या चीज़ है। तो हम लोगों ने बताया कि हाँ ये बच्चे SLD में आते हैं, जो बच्चे इस तरह के होते हैं SLD में आते हैं। While teachers and special educators are screening students, the lack of parental awareness hinders remedial action. तो मैम ने कहा फिर इनका क्या किया जाएगा। तो हम लोगों ने ये किया कि ये दिव्यांग बच्चों में ही आएंगे ये भी। तो बहुत से लोगों ने तो इस पर नाराज़गी जताई कि हाँ ये बच्चे कैसे, हम दिव्यांग कैसे, तो देखने में तो एकदम नॉर्मल लग रहे हैं, खेल भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटी सारी जितनी है नॉर्मल बच्चों की तरह, सिर्फ पढ़ने लिखने में ही तो हैं, पढ़े नहीं होंगे तभी हो गया। पेरेंट्स तो बिल्कुल तैयार ही नहीं होता कि हमारा बच्चा दिव्यांग है। अरे दिव्यांग कैसे कर दिया आपने, आप कहाँ इसके पैर टूटे, हाथ टूटे, क्योंकि उनको वो अवेयर ही नहीं है। उनको लगता है जिसके पैर, हाथ या शरीर में कोई विकृति है यानी वो दिव्यांग है। SLD कैसे दिव्यांग हो गया। Special educators are working closely with both teachers and parents to educate them on learning disabilities and available support. समझाना पड़ता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दिव्यांग बच्चे अब पहले जो डिसेबिलिटी थी उसमें चेंज हो गया है, अब 21 प्रकार की दिव्यांगताएं आ गई हैं, उसमें SLD भी आते हैं। SLD का मतलब ये थोड़ा नहीं है कि आपका बच्चा हमेशा के लिए SLD हो जाएगा या कभी ठीक ही नहीं होगा। पे वर्क किया जाता है, पढ़ाया जाता है, प्रॉपर वर्क करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो पेरेंट्स को ये सब समझाना, इसीलिए हम लोग पेरेंट्स काउंसलिंग रखते हैं। साल में 3 बार हम लोग करते हैं पेरेंट्स काउंसलिंग। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ें होती हैं बच्चों में, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए,
जो भी लाभ होगा हम लोग देंगे उनको। The administration is working to establish diagnostic interventions for early identification of learning disabilities and to raise awareness among parents. अब बात करना चाहते हैं डिसेबिलिटी की रिगार्डिंग, तो हम बहुत से बच्चे आते हैं जो IQ असेसमेंट के लिए आते हैं और डिसेबिलिटी जो कि रिक्वायरमेंट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन की, और SLD और ऑटिज्म के बच्चे भी आते हैं। बहुत हद तक तो लोगों को ये जानकारी नहीं है कि डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया के कई प्रकार होते हैं और डिसलेक्सिया के सिवियरिटी लेवल भी अलग अलग हो सकते हैं। स्कूल से जनरली रेफर्ड होते हैं क्योंकि स्कूल में बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे होते, मार्क्स उनके काफ़ी गलत ख़राब आ रहे होते हैं, तो पेरेंट्स ये इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। उनको खुद से ये जानकारी नहीं होती कि डिसलेक्सिया या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी भी कोई दिक्कत होती है। Through formal diagnostic tests aligned with policy guidelines, they aim to better assess children's needs and provide timely support. विद रिगार्ड्स टू असेसमेंट टूल्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि असेसमेंट बैटरीज हम यूज़ करते हैं। असेसमेंट बैटरी का मतलब कोई बहुत बड़ी मशीन या जैसे MRI या CT स्कैन उस तरीके की मशीन है, वो नहीं होता है। बैटरी का मतलब जो हमारे साइकोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता था, वो कई तरीके के सब टेस्ट को मिला के एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट बनाया जाता है जो कि आपके ब्रेन के अलग अलग फंक्शनिंग को रिफ्लेक्ट कर पाए। उसको हम एक बैटरी का फॉर्म या बैटरी बोलते हैं। इसमें SLD बैटरी में क्योंकि कई तरीके के डिफ़िकल्टीज़ होती हैं SLD में, तो बैटरी में भी उसी से संबंधित टूल्स या स्केल्स या परफॉर्मेंस के टास्क होते हैं। जैसे SLD में बच्चे को लिखने की दिक्कत होती है या पढ़ के समझने की दिक्कत होती है या उच्चारण में दिक्कत होती है या मैथ्स में दिक्कत होती है, तो उस बैटरी के माध्यम से या उन सवालों के माध्यम से उन एस्पेक्ट पे चेक किया जाता है कि वो दिक्कत कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, किस लेवल की है, क्या उसका परसेंटाइल है और उसकी सीवियरिटी लेवल क्या है। तो ये पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं, ना कि कोई मशीन के माध्यम से करने वाली जांच। ऐसे ही IQ असेसमेंट में भी कई तरीके के टेस्ट होते हैं, कई तरीके के ब्रेन में एरियाज़ होते हैं, तो हर जो भी संभव है उसको हम बिहेवियर के माध्यम से, उनकी परफॉर्मेंस के माध्यम से जांचते हैं। The administration is working diligently to ensure effective early intervention so that remedial measures can be provided for maximum impact. क्योंकि ये SLD एक डिसेबिलिटी है, तो ये जो कहेंगे ना दिखने वाली दिक्कतें हैं, ये उनमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस कॉज करती हैं, वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जी पाते हैं। हालांकि इस तरीके के बच्चों में बहुत सी अदरवाइज क्वालिटी होती हैं, पर फोकस अधिकतर पढ़ाई पे होता है क्योंकि वो एज पढ़ाई की होती है। तो इंटरवेंशन से उनमें करेक्शंस की संभावना बढ़ जाती है अगर वो अर्ली आइडेंटिफाई हो जाएं और एडिक्वेट इंटरवेंशन उनको मिल जाए। The administration has also been training school teachers about the importance of not just screening, but also the advantages of clinical diagnosis and getting the SLD certification. सबसे पहले मैंने उद्यमिता में जब ट्रेनिंग लिया तो मुझे पता चला कि SLD वाले बच्चों का भी सर्टिफिकेट बन सकता है। तो वहाँ से जो मैम आई थी ट्रेनिंग देने के लिए, मैंने उनसे जो है GO लिया। तो एक दिन मैं स्कूल पे गया तो वहाँ पे मैंने नोडल टीचर से बात करने लगा, तो मैम ने बताया कि एक बच्चा है जो अक्सर अक्षरों को उल्टा लिखता है। तो मैं उस बच्चे का बुक मंगवाया और देखा कि बच्ची जो है B को D लिख रही थी और D को B लिख रही थी, M को W लिख रही थी, मतलब उसमें ही और बाकी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर लिख रही थी। लेकिन कुछ जैसे A B जो मिलते जुलते अक्षर थे उनको लिखने में उससे समस्या आ रही थी। तो मैं साइकोलॉजिस्ट के पास ले गया, तो साइकोलॉजिस्ट बोली पहले इसका IQ टेस्ट कराएंगे, इसके बाद ही लर्निंग डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनेगा। तो ठीक है, मैंने उसका जो है IQ टेस्ट करवाया, तो IQ टेस्ट उस बच्ची का नॉर्मल निकला। तो मैं AMU मेडिकल कॉलेज में ले गया, वहाँ पे उसका टेस्ट करवाया, तो वो बच्ची जो है 40% माइल्ड कैटेगरी की लर्निंग डिसेबिलिटी बच्ची है। आज उस बच्ची का सर्टिफिकेट बन गया है। Early identification is key to success in education and preserving self-esteem. 4 in 5 dyslexics say knowing they were dyslexic helped them understand their strengths and struggles. RPWD Act 2016 provides guidelines for identifying SLDs, ensuring early screening in schools and completion through the medical process.
From Delhi to Nagaland, Bihar to UP, early detection of learning disabilities is making a difference. The road ahead is long, but with awareness, action and empathy, we can help every child unlock their full potential.